ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی ان دنوں لداخ کے دورے پر کئی پروگراموں میں حصہ لیتے دیکھے گئے۔ دفعہ 370 اس قدر مضبوط ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں اپنا کیس از خود لڑ رہا ہے۔ عوامی نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر مظفر شاہ کا بیان، عدالتی کارروائی کی تفصیل بیان کی۔ جموں کشمیر میں حالات اگر ٹھیک ہیں تو الیکشن کیوں نہیں کرائے جاتے؟ میں چاہتا ہوں کل کیا آج سے ابھی سے وادی میں الیکشن ہو۔ پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون کا بیان۔ ڈی ڈی سی ممبر ویرناگ پیر شہباز نے ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی سے کنارہ کشی کر لی۔ کہا لوگوں نے ہی فیصلہ لیا ہے کہ اس پارٹی سے لا تعلقی اختیار کر لیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی ان دنوں لداخ کے دورے پر ہیں، جہاں انہیں کئی پروگراموں میں حصہ لیتے دیکھا گیا۔ آج راہل گاندھی کا الگ انداز دیکھنے کو ملا۔ کانگریس لیڈر لیہ شہر سے پینگونگ جھیل تک اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوئے۔ راہل گاندھی نے اپنے انسٹاگرام پر بائک چلاتے ہوئے کچھ تصاویر شیئر کی ہیں۔ اس دوران وہ ایک الگ ہی انداز میں نظر آئے۔ تصویروں کا کیپشن دیتے ہوئے راہل نے لکھا، میں پینگونگ جھیل جا رہا ہوں۔ میرے والد کہتے تھے کہ یہ دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس دوران کانگریس لیڈر نے لیہ، لداخ اور پینگنگسو کے ہیش ٹیگ بھی استعمال کیے۔ غلام نبی آزاد نے ایک ویڈیو جاری کر کے ہندوستان کے بیشتر مسلمانوں کے ہندو مذہب سے متعلق بیان پر وضاحت کی ہے۔ غلام نبی آزاد کا کہنا ہے کہ ان کا پورا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ ہندوستان کی بات کر رہے تھے اور انہوں نے ہندو مذہب کو قدیم ترین ہونے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مذہب اسلام ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ یہاں بھی اسی طرح پھیلا ہے جس طرح پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ اس کے ساتھ غلام نبی آزاد نے یہ بھی کہا کہ اسلام اپنی تعلیمات کی وجہ سے اتنا پھیلا ہے۔ میں نے ایک تقریر کی تھی جس کو پورا ریکارڈ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے کچھ خدشات عوام میں پیدا ہو گئے۔ دراصل میں ہندوستان میں ہندو مسلمان اتحاد کے بارے میں بول رہا تھا، اور میں یہ بھی بول رہا تھا کہ کچھ لوگ جو عام طور پر کہتے ہیں کہ مسلمان باہر سے آئے ہیں، میں اس کا ترک ہمیشہ دیتا ہوں کہ یہ دو چیزیں واضح ہیں۔ ایک تو مسلمان بہت ہی چند باہر سے آئے ہیں، زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہندوستانی مسلمان ہیں، اور نہ دنیا میں اور نہ ہمارے ملک میں اسلام کبھی بھی تلوار کے ذریعے نہیں آیا ہے، بلکہ محبت، پیار اور پیغام کے ذریعے آیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ان تمام چیزوں کو ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ عوامی نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر مظفر شاہ نے کہا کہ دفعہ 370 اس قدر مضبوط ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں اپنا کیس از خود لڑ رہا ہے۔ سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ہفتے کو پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مظفر شاہ نے کہا کہ دفعہ 370 کی تنسیخ کو چیلنج کرنے والے فریقین کی جانب سے منگل کو حتمی طور پر سپریم کورٹ میں دلائل پیش کیے جائیں گے، جس کے بعد مخالفین کو اپنے دلائل پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کپل سبل سے لے کر بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایڈوکیٹ ظفر شاہ تک نے دفعہ 370 کے حق میں باریک بینی سے اپنے دلائل پیش کیے اور اس کی تنسیخ کو غیر قانونی و غیر آئینی قرار دینے کے حوالے سے تمام نکات کو ابھارا۔ عوامی نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر کا کہنا تھا کہ اب حتمی طور پر منگل کو 4 سے 5 وکلاء کی ٹیم دفعہ 370 اور 35A کے حق میں اپنے دلائل پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 اس قدر مضبوط ہے کہ یہ خود اپنا کیس لڑ رہا ہے۔ شاہ نے کہا کہ دنیا بھر کی نظریں سپریم کورٹ آف انڈیا پر ہیں، کیونکہ عدالت عظمیٰ کو دنیا میں ایک انصاف پسند ادارے کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ کے عوام کو بھی امید ہے کہ سب سے بڑی عدالت سے انہیں انصاف ملے گا اور انہیں کسی بھی طور پر مایوس نہیں کیا جائے گا۔ مظفر شاہ نے ان خدشات کو بھی غلط قرار دیا جس میں کہا جا رہا ہے کہ دفعہ 370 کا حال بھی بابری مسجد جیسا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں عدالت نے واضح کیا ہے کہ اس سے قومی مفاد کے نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت عظمیٰ نے واضح کیا ہے کہ انہیں دوسری باتوں سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ وہ اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ آیا 5 اگست سن 2019 کو جو فیصلہ لیا گیا وہ آئینی اور قانونی اعتبار سے صحیح تھا کہ نہیں۔ بی جے پی کی اس کوشش کی مذمت کرتے ہوئے عوامی نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر مظفر شاہ نے کہا کہ یہ ایک قابل نفرت اقدام سے کم نہیں ہے جس کی سیاسی خطوط پر مذمت کی جانی چاہیے۔ شاہ نے کہا کہ شیخ عبداللہ مہاتما گاندھی کی طرح بابائے قوم تھے جنہوں نے عوام کے مقصد کے لیے جد و جہد کی۔ انہوں نے کہا کہ شیخ عبداللہ کی محبت اور احترام آج بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے اور ان کی بے عزتی عوام کے جذبات کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ شاہ نے مزید کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بی جے پی کتنی ہی حدیں عبور کر لے، ان کی چالیں جموں کشمیر کے لوگوں کو اس چیز سے منحرف نہیں کر سکتی جس چیز سے وہ محبت اور احترام کرتے ہیں، اور نہ ہی اس طرح کی کاوشوں سے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لداخ کے انتخابات میں بی جے پی کا بوریا بستر گول کیا جائے گا۔ واٹر ٹائٹ کیس 370 اپنی پیروی خود کر رہا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، اور ہمارے وکلا نے بہت خوبصورتی سے اس کو پیش کیا گیا اور صحیح دلائل سامنے رکھے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کیونکہ آج پورا ورلڈ ماننیہ سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف انڈیا کو پورے ورلڈ میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ کے عوام بیتاب ہیں کیونکہ ٹیوزڈے کے بعد میں جو اس کے مخالف ہیں 370 کے مخالفین، ان کی دلائل سنی جائیں گی، اور شاید ہمارے، جہاں تک میں ایک پٹیشنر کے تحت طور پہ کہہ سکتا ہوں، ہمارے وکلا نے اور 370 نے خود وہاں پر کوئی کسر ہی باقی نہیں رکھی ہے کہ آپ اس کو ان کے آرگیومنٹس کو الٹا کر سکتے ہیں، یا جو 370 کا آئینی اور قانونی جو اس کی شرائطیں ہیں اس کو آپ پلٹ کر سکتے ہیں۔ مرکزی حکومت کے مطابق اگر جموں کشمیر میں حالات ٹھیک ہیں تو الیکشن کیوں نہیں کرائے جاتے؟ میں چاہتا ہوں کہ کل کیا آج سے ابھی سے وادی میں الیکشن ہو۔ ان باتوں کا اظہار پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے ہندواڑہ کے دور دراز علاقے لچھم پورہ اور راجور میں ایک پبلک ریچ آؤٹ پروگرام کے دوران گلستان نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا۔ لون نے کہا کہ چاہے ہمارے دشمن ہو یا کوئی اور، وادی میں ابھی سے الیکشن ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی سرکار کو ڈر ہے، خوف ہے، اس لیے الیکشن کرانے سے کترا رہی ہے۔ لون نے میر وائس کی نظر بندی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ہمیشہ اس بات سے ناراض ہوں، یہاں کی انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان پر کوئی روک ٹوک نہیں، تو انہیں گھر سے باہر جانے اور نماز کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ شروعات کرا پارٹی ہند طرف اخ میون پروگرام ایز پریزیڈنٹ آف پارٹی یتھ مز بہ تقریباً 400 گامن مز گھس ونکہ پہ فروریس تام یا مارچس تام اس انوول پارلیمنٹ الیکشن 400 گامن 400 گامن جب سے پی سی یہاں آئی تن پہ لوگ بنگس سری بنگس ہم صرف دمکی دماغ بناؤ سڑک، ہم نے 40 کلومیٹر کی سڑک آج ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی ڈی پی اے پی کے سینئر رہنما اور ڈی ڈی سی ممبر ویرناگ پیر شاہ باز نے پارٹی سے کنارہ کشی کر لی۔ اس کا اعلان انہوں نے ایک مختصر پریس بیان میں کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ڈی پی اے پی ان کے لیے صحیح پارٹی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ہمیں ویرناگ کا نمائندہ چنا ہے اور لوگوں نے ہی فیصلہ لیا ہے کہ ہم آج سے اس پارٹی سے لا تعلقی اختیار کر لیں۔ ڈی ڈی سی کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر اپنے کارکنان کے ہمراہ ڈی پی اے پی سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ ڈی ڈی سی ممبر پیر شاہ باز نے اپنے پریس بیان میں کیا کچھ کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کا حکم
सर आंखों पे मान के आज ये फैसला लिया। 15 सरपंच हैं हमारे और कम से कम 80-90 हमारे पंच हैं और उसके साथ साथ इस पार्टी के ओहदेदार भी हैं। मैं फाउंडर मेंबर इस पार्टी का हूं। मेरे साथ मुजफ्फर साहब है, सरपंच तो है ही है, उसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के, अहमदुद्दीन साहब है, जनरल सेक्रेटरी हैं, हिलाल साहब है, सेक्रेटरी हैं, हमारे इशफाक साहब है, इसमें बॉडी में एग्जीक्यूटिव मेंबर है, हमारे सुनाउल्लाह भट्ट साहब हैं, या और भी हमारे साथी बहुत सारे हैं। हम सब ने टेलीफोन पे बात करके इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आज हम इस पार्टी को खैरबाद करते हैं। लोगों का हुक्म हमारे सर आंखों पे है, क्योंकि ये पार्टी वैली कश्मीर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। चेयरपर्सन जिला तरक्याती कौंसिल गांदरबल नुज़रत अशफाक ने ओहदेदारों की एक टीम के साथ आज लार गांदरबल में माहौलियाती पार्क की मुजव्वज़ा जगह का दौरा किया। इस दौरे का मकसद मकामी कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए पार्क को तैयार करने की फिजिबिलिटी और सलाहियत का जायज़ा लेना था। दौरे के दौरान चेयरपर्सन के हमरा कंजर्वेटर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मीर हफीजुल्लाह, SCR&B गांदरबल निसार अहमद लाला, तहसीलदार लार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B गांदरबल, DFO माहौलियात गांदरबल, साबिक MLA गांदरबल शेख अशफाक जब्बार, मकामी हुक्काम, माहौलियाती माहिरीन और मुख्तलिफ हुकूमतों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस पार्क का मकसद गांदरबल के रिहायशियों के लिए एक पुरसुकून और सरसब्ज़ व शादाब जगह फराहम करना है और साथ ही सयाहों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और बेदारी को फ़रोग़ देना है। मुजव्वज़ा माहौलियाती पार्क में खूबसूरत मनाजिर के सरसब्ज़ व शादाब बागात, पैदल चलने के रास्ते और तफरीही सहूलियात की तवक्को है। इसका तस्वुर एक ऐसी जगह के तौर पर किया गया है जहाँ लोग इकट्ठे आराम कर सकते हैं और माहौल की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। DDC की चेयरपर्सन ने पार्क की बरवक्त तरक्की को यकीनी बनाने के लिए अपने आज़म का इजहार करते हुए मकीनों को यकीन दिलाया कि उनकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात पर मुनासिब गौर किया जाएगा। प्रपोजल दिया कि ये बहुत अच्छी साइट है यहाँ, तो आप यहाँ इको पार्क या एनवायरनमेंट पार्क डेवलप करें। इसके लिए हमने काम पे लगे हैं। अभी ये टेक ओवर करना है रेवेन्यू वालों से भी लैंड, क्योंकि इसमें हमें ऑफिशियली मतलब वो ऑर्डर्स इशू हो गए हैं। जो भी है अभी टेक ओवर करना है हमें, तो इसको डेवलप करेंगे। इसमें एनवायरनमेंट पार्क फ्रॉम एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एनवायरनमेंट सेफ गार्ड के लिए हम एक्टिविटीज़ करेंगे। उसमें एक बाज़ाब्ता DPR बनेगा और कौन सी एक्टिविटीज़ होगी। यूजुअली यही इनमें जैसे अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं अटेंशन कुछ नगर वन मियावान की प्लांटेशन, हर्बल सेक्शंस, बायोडाइवर्सिटी पार्क की डेवलपमेंट, चिल्ड्रन सेक्शन अलग बनेगा, वॉकवेज अलग बनेगा। मान लीजिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ इको टूरिज्म, और जो यहाँ के अगल बगल के लोग हैं इट विल बी वेरी प्रेशियस थिंग फॉर देम टू हैव वेरी। 29 जुलाई को ज़िले गांदरबल के गुजरपति प्रियंग में बादल फटने के बाद इलाके में पैदा शुदा सूरत हाल से मकामी लोग काफ़ी परेशान हैं। ज़िला इंतज़ामिया से बहाली के काम में मुआवनत करने का वो मुतालबा कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक 29 जुलाई को गुजरपति प्रियंग के ऊपरी इलाके में बादल फटने से मकामी लोगों को जहां काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, वहीं अब लोग इससे पैदा शुदा सूरत हाल से काफ़ी परेशान हैं। मकामी लोगों का कहना है कि सैलाबी पानी की वजह से इलाके के कई घरों में पानी जमा होने से कमरों में मलबा जमा हो गया है। गली कूचों में मलबे के साथ साथ जंगल से पानी के साथ आए बड़े बड़े पेड़ भी जमा होने से बहाली के काम में रुकावटें पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे वो निजी तौर पर बहाली के काम में लगे हैं, ताहम उन्हें इंतज़ामिया की मदद की काफ़ी ज़रूरत है। उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया कि मकानों और सहनों में जमा मलबा जल्द नहीं हटाया गया तो यहाँ बीमारियाँ फैलने का ख़तरा है। मकामी लोगों ने महकमे जल शक्ति से अपील की है कि इलाके में तबाहशुदा पीने के पानी के पाइपों को ठीक करें ताकि इलाके में पीने के साफ़ पानी की बहाली मुमकिन हो सके। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल से मुतालबा किया है कि वो महकमे जल शक्ति, महकमे जंगलात, महकमे सेहत और देही तरक्की की टीमों को इलाके में रवाना करे ताकि बहाली के काम में मदद मिल सके। इस दौरान मकामी लोग जो बादल फटने की वजह से खौफजदा हैं और जिनके घरों में कीचड़ भरा हुआ है, पानी और मलबा जमा है, उन्होंने कहा कि अगरचे उन्हें इस वक्त 10,000 रुपये मुआवजा और चंद कंबल वगैरह दिए गए थे, ताहम उसके बाद इंतज़ामिया के अफसरान उन्हें खुदा के रहमो करम पर छोड़ गए हैं। मैं गुजरपति प्रियंग से हूँ और मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल गुजरपति प्रियंग है। परसों बादल फटने की वजह से हमारे स्कूल में पानी चला गया और हमें टेंट्स में शिफ्ट किया गया।
उस दिन बारिश पड़ने की वजह से हमारे टेंट्स गीले हो गए और हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो गई और हमें टॉयलेट जाना पड़ता है, हमारे बाथरूम नहीं है और हमें ना पानी है ना पावर है, हमें जाना होता है ऊपर नदी के पास, वहाँ से गंदा पानी लाना होता है और पीना होता है। और हम एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और हमें नई बिल्डिंग दे। हमें क्लास रूम जाने से डर लगता है क्योंकि स्कूल की दीवार टूटी हुई है। उस दिन सैलाब के साथ जो पानी आया वो हमारे स्कूल में गया। हमें अंदर क्लास रूम के जाने से डर लगता है क्योंकि वो टूट भी सकता है, हम मर भी सकते हैं उसकी वजह। तो एक आवाज़ आई है, आवाज़ के साथ ही पानी सैलाबी सूरत में तब पूरा पानी लकड़ी वगैरह घरों में घुस गई, मस्जिद शरीफ शहीद हो गई और स्कूल में पानी घुस गया रात के 3 बजे। ये कोई 29 तारीख की बात है, 29 तारीख सुबह के 3 बजे पानी घुसा घरों में। यहाँ पे स्कूल में मस्जिद तबाह हो गई, घर तबाह हो गए, उसके बाद तो ज़मीन बाग सारा कुछ यहाँ पे वीरान हो गया है। ARTO बारामूला ने हादसात को रोकने के हवाले से मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट दिए और उनकी काउंसलिंग की और वटल जंगीर में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान ARTO बारामूला मौज़म अली के साथ MVI इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मोटरसाइकिल सवारों को काउंसलिंग के साथ हेलमेट भी फराहम किए। इस मौके पर ARTO बारामूला ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद है कि आवाम में बेदारी लाई जाए ताकि हर कोई ट्रैफिक कवानीन को पर अमल करे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम बारामूला और इसके इलाका जात में लगातार रोड चेकिंग करने वाले हैं और जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। स्पेशली सभी वायलेटर्स के लिए, लेकिन स्पेशली उन वायलेटर्स के जो बिना हेलमेट के मोटर बाइसिकल राइड करते हैं या स्कूटी चलाते हैं हेलमेट के बगैर। ये इसमें RTO साहब की डायरेक्शन भी है सभी ARTOs को कि थोड़ा सा इन्फोर्समेंट, थोड़ा सा जो भी ये वायलेट करते हैं विदाउट हेलमेट गाड़ियाँ ये मोटर बाइसिकल्स चलाते हैं, थोड़ा सा हम उनके खिलाफ इन्फोर्समेंट करें। आज हमने आज स्टार्ट किया ये ड्राइव। आज हम वटलब रोड पे आए हैं। पहले दिन अब आज हमने ये रखा कि इन्फोर्समेंट हम आज कम कर रहे हैं, हम थोड़ा सा काउंसलिंग ज़्यादा कर रहे हैं आज तो। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा ये ड्राइव चलता रहेगा और आने वाले दिनों में हम एनफोर्समेंट ही करेंगे, चालानी हो जाएगी, पैनल जो भी विदाउट हेलमेट पाया जाएगा उसके खिलाफ उसको कार्रवाई होगी। और मीनवाइल आज हम ज़्यादा काउंसलिंग ही करेंगे इनको कि ताकि ये जो भी मोटर बाइसिकल राइडर है वो हेलमेट पहन के रोड सेफ्टी। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के डिबरूना अशाजीपुरा इलाके में लोगों ने स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के ख़िलाफ़ सड़कों पर आकर एहतजाजी मुजाहरे किए। तफसीलात के मुताबिक डिबरूना इलाके में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने शनिचर के रोज़ सड़कों पर आकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बताया कि PDD महकमे की जानिब से इलाके में स्मार्ट मीटर नस्ब करने का सिलसिला शुरू किया गया है जो नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि आए रोज़ नए ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं जिसकी वजह से लोग ज़हनी परेशानियों में मुब्तला हो गए हैं। एहतजाजियों का कहना था कि वो गरीब हैं और उनके इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने से उन्हें बिजली की भारी बिलें आएंगी जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन मीटरों को उन्हीं इलाकों में नस्ब करें जो लोग बिल बर्दाश्त कर सकते हैं। एक एहतजाजी खातून ने कहा कि यहाँ ज़्यादातर मुजाहिरीन ख़त इफलास से नीचे ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं और उन्हें घर में सिर्फ एक ही कमाने वाले हैं और अब सरकार उन्हें स्मार्ट मीटर्स लगाकर कमज़ोर कर रही है। योर कन कि तुम दियो दशने साइड नजर ये चून त्रत ओतान आबाद अत योकुन फुट 20 वजू मतलब नजुल मान यह डिफेंस ये आबाद जमीन अगर यम 20 फुट ये थोद तुलान तो ये बन खंडरात हम आबाद 60 फुट वसान ये तेम वे पुरन बिना बे कुछ यह पुरन यहाँ पे स्मार्ट मीटर नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पे सभी गरीब हैं, यहाँ पे कोई भी अमीर ना यहाँ पे चावल देते हैं ना यहाँ पे बिजली का मसला है, पानी का मसला है, हर चीज का मसला इस गांव में होता है। डबरू गांव नाम है इसका।
यहाँ पे हर चीज का मसला है, ना चावल ठीक से देता है, ना गरीबों को सिर्फ मारने का काम है। क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम मीटर में पैसे भरेंगे। हम ये नहीं भर पाते तो आगे क्या भरेंगे, आप ही सोचो। वैसे भी ज्यादा आता है, 1500-1600 रुपए पैसे आते हैं, इतने हमारे पास औकात ही नहीं है भरने की, हम गरीब हैं। आएगा ना, जब इसमें आया है तो मसला सीधी सी बात है उसमें भी आएगा। 1500-2000 रॉपी दिल वन अगर हम मीटर लागन कोता यी तो तुम करो बरवा नलक फीस तोमुल कोरुक बंद बरवा नलक फीस बरवा पावर फीस करो क्या वन अगर ये मुलाजिम लगिन आशा कर मुलाजिम जेनान यप बढ़ ये सुबह नीरान महनी रॉपियस छान 500 सुबह बिजली फीस भर पावर फीस भर क्या कर गरस लगे इसलिए दपान मीटर नीव सा वापस मीटर तुम थो सा यहाँ पे स्मार्ट। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के पितलबाग इलाके के लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की कि उनके इलाके में ज़मीन की खुदाई करने की इजाज़त न दी जाए। पितलबाग इलाका दरिया जहलम के नज़दीक इलाका आबाद है, जहाँ पर इलाके के लोगों के साथ साथ सरकारी ज़मीन भी दरिया जहलम के नज़दीक ही मौजूद है, जबकि इलाका कुछ ही फासले पर आबाद है। सरकार अगरचे सरकारी ज़मीन पर खुदाई करना चाहती है, जबकि मकामी लोगों के मुताबिक अगर सरकार ने सरकारी ज़मीन पर खुदाई की इजाज़त दी तो उनकी मिल्कियत ज़मीन के साथ साथ पूरी आबादी को ख़तरा लाहक हो जाएगा। इस ज़िम्न में ग़ुलाम मोहम्मद बट ने कहा कि ये सरकारी ज़मीन हमारी मिल्कियतें ज़मीन की हिफाजत कर रहा है और अगर सरकार ने इस पर खुदाई करने की इजाज़त दी तो हमारी मिल्कियतें ज़मीन को नुकसान पहुँच सकता है। उन्होंने कहा कि हम इंतज़ामिया को सरकारी ज़मीन पर खुदाई करने से नहीं रोक सकते हैं, ताहम हमारी मिल्कियती ज़मीन और आबादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इंतज़ामिया किस तरह के इक़दामात उठाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस ज़मीन पर इलाके के लिए कोई फलाह व बहबूद का काम अंजाम देगी तो हम इनका भरपूर साथ देंगे और अगर उनकी जानिब से खुदाई की इजाज़त दी गई तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। योर कन कि तुम दियो दशने साइड नजर ये चून त्रित ओतान आबाद अत पे योकुन फुट 20 वजू मतलब नजुल मान यह डिफेंस ये आबाद जमीन अगर यम 20 फुट ये थोद तुलान तो ये बन खंडरात हम आबाद 60 फुट वसान ये मज तम वर पुरन हुन बिना बे कुन शे यह पुरन ये आबाद यह सालिम बस्ती ये हुत पे योतान नमन कचन तान फुट 7 या 4 आसान या 5 तथ मज सालिम बस्ती। मोहम्मद अल्ताफ़ बट के अहल खाना ने ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा से अपील की है कि मोहम्मद अल्ताफ़ की मौत की जांच की जाए। अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़िला अस्पताल पुलवामा में डॉक्टरों की गफलत की वजह से उसकी मौत वाक़ हुई है। उनके लवाकिन ने बात करते हुए कहा कि चंद रोज़ कबल हमने मोहम्मद अल्ताफ़ को यहाँ पर इलाज के लिए लाया था। मरहूम ने घर में शिकायत की थी कि उसके सीने में दर्द है, जिसके बाद इसको ज़िला अस्पताल पुलवामा लाया गया, जहां पर उनकी तिब्बी जांच शुरू कर दी गई, जिसके डॉक्टरों ने कहा कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है। इनको अद्वियात दी गई, जबकि उन्होंने इसको CEG करने के लिए भी कहा। चंद घंटों के बाद उनको घर जाने के लिए कहा गया, लेकिन 1 घंटे के बाद उनके सीने में दर्द मज़ीद बढ़ गया और अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते उनकी मौत वाक़ हो गई। उन्होंने महकमा सेहत के अफसरान के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वो इस मामले की जाँच करें और डॉक्टरों ने गफलत की है तो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वो दोबारा इस तरह का मामला न कर पाए। घर में बोला मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। हम आए शाम के 7:30 बजे, यहाँ हमने डॉक्टर को दिखाया, उसने बीपी चेक किया, बीपी बहुत राइज था। फिर हमने ECG करवाई, उन्होंने बोला ECG करवाई। ECG मतलब हमारे हिसाब से वो ठीक नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। वापस वो ट्रीटमेंट करते रहे 4 घंटे तक। 4 घंटे तक 11:30 बजे उन्होंने बोला चलो ठीक है, अब आप घर जाओ। फिर हम वापस आए, उसको ज़्यादा तो और ज़्यादा पेन हुई थी, फिर उन्होंने मतलब वो उसकी डेथ हो गई। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इकरामाबाद डोडा के एक छोटे से स्कूल में अफरोज़ के वालिद ने आज से 15 साल कबल अपनी बेटी का दाखिला करवाया था। खुद मज़दूर पेशा होने की वजह से असातिज़ा से गुजारिश की थी कि मैं एक मज़दूर हूँ, बड़ी मुश्किल से गुजारा करता हूँ, लिहाजा मेरी बच्ची को अच्छी तरह से पढ़ाना। और अफरोज़ अपनी पढ़ाई शुरू की और 8वीं जमात तक इसी स्कूल में तालीम हासिल की और 8वीं पास करने के बाद अफरोज़ा ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में पढ़ाई जारी रखी।
अफरोज़ा की कामयाबी पर इकरामाबाद स्कूल की टीचर का कहना है कि उन्हें खुशी है कि उनकी तालिबा ने कौमी सतह के इम्तहान में कामयाबी हासिल की है। वो इम्तहान पास कर चुकी है। उनका कहना था कि वो बचपन से ही बहुत ज़हीन थी। स्कूल में पढ़ाई और सीखने का अच्छा माहौल है और बच्चे भी खूब मेहनत से पढ़ रहे हैं। अफरोज़ा की इस कामयाबी की वजह से इकरामाबाद स्कूल के बाकी बच्चों में काफ़ी जोश व जज्बा पैदा हुआ है। स्कूल के एक तालिब इल्म ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो अफरोज़ा की कामयाबी पर बहुत खुश है और इनमें भी ऐसे इम्तहान में कामयाब होने का जज्बा पैदा हुआ है ताकि वो अपने वालिदैन और इलाके का नाम रोशन कर सकें। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के हरनाग इलाके में आज एक सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई। ये सड़क हादसा हरनाग अनंतनाग में स्कूल बस और साइकिल के दरमियान पेश आया। इस वाक़े में साइकिल सवार बशीर अहमद डार साकिना मिनवाड़ हरनाग अनंतनाग शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया और उसे GMC जंगलात मंडी अनंतनाग मुंतकिल किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। उधर पुलिस ने इस सिलसिले में तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं लाहिकीन के मुताबिक वो मज़कूरा ड्राइवर पर कोई केस नहीं कराएंगे, जबकि इंतज़ामिया जो अपनी तरफ से करना चाहेगा वो कर सकते हैं। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख के दौरे पर कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेते देखे गए। दफा 370 इस कदर मजबूत है कि ये सुप्रीम कोर्ट में अपना केस आज खुद लड़ रहा है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह का बयान, अदालती कार्रवाई की तफसील बयान की। जम्मू कश्मीर में हालात अगर ठीक हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं कराए जाते? मैं चाहता हूं कल क्या आज से अभी से वादी में इलेक्शन हो। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का बयान। BDC मेंबर वीरनाग पीर शाहबाज ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से किनारा कशी कर ली। कहा लोगों ने ही फैसला लिया है कि इस पार्टी से लाताल्लुकी इख्तियार कर ले। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।